Hello friends, welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about the tumor suppressor genes on the basis of that oncologist study. Previous video lecture, we are talking about that oncogenes. Okay, so you are know about that what are the oncogenes. Okay, today I will discuss about that tumor suppressor genes with examples. Right, tumor suppressor genes is name indicates that they prevent the formation of the tumor, so that it is a very interesting as well as very important genes for that prevention of the tumors in our body. And if the tumor suppressor genes is deposited or destroy, which cause the cancer, right? You can see that this is a chromosomal study, that if the mutated genes, if the one mutated genes which are found in that chromosomes, but you can see that the cell become a normal growth, right? But if the two copies of the genes which are mutated, which cause the loss of growth control and loss of growth cycle, right? So it is a very interesting topic. How can they cause cancer and how can they prevent tumor formation? Okay, so let us discuss about the history. The Henry Harris first of all discovered the tumor suppressor genes at 1960. And how can they discover? He discovered by the one type of that experiment. This experiment showed the normal cells, it attach via tumor cells and get hybrid cells. Both types of hybrid cells Henry can get. One hybrid cells is a normal, and some are the hybrid cells are the tumor formation genes, tumor causing cells. Okay, or uncontrolled cell division are also found in this tumor causing cells. Okay, but some hybrid cells are the normal. तो ऐसा क्यों हुआ, उसका ये कंक्लूजन निकला कि normal cells they produce one type of the gene products which suppress the uncontrolled cell growth. तो नॉर्मल सेल्स जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे कि जिससे क्या हो रहा था कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ का सप्रेशन हो रहा था. सप्रेशन यानी कि उसकी डिस्ट्रॉय यानी कि उसका प्रिवेंशन हो रहा था. ओके, बट ये कैसे हुआ कि सम हाइब्रिड सेल्स आर द नॉर्मल एंड सम हाइब्रिड सेल्स आर not normal and tumor causing cells. Okay, because of the two mutations which are required to inactive tumor suppressor genes. Okay, two mutations बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है, ये याद रखना. ये है न्यूटन टू हिट हाइपोथेसिस थियरी. ओके, टू हिट हाइपोथेसिस थियरी यानी कि अगर आपको कैंसर करवाना है ऐसा तो नहीं होता मैं तो आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो पेशेंट्स है जो कैंसर से सफ़रिंग कर रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है कि दो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के जो जीन्स है वो क्या हो चुके होंगे, म्यूटेटेड हो चुके होंगे. सो दैट ऑन्कोजीन्स आर एक्टिवेटेड एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर डीएक्टिवेटेड एंड द कोजिंग द म्यूटेशन एंड आफ्टर द म्यूटेशन विच कोज द कैंसर. ओके, कैंसर दूसरा कोई भी आपको अगर एज अ वन लाइन में आपको कहना चाहे तो कैंसर इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट जीनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, ऐसा भी कह सकते हैं हम, बिकॉज इट इज़ डिपेंड्स ऑन द जीन एक्टिविटी, कि जीन कैसे वर्कआउट कर रहा है उस पर ये डिपेंडेड है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट आर द म्यूटेशंस विच रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द जीन्स. ओके, the missense mutation, that after one truncated proteins, deletions, insertions and epigenetic silencings which are destroy the activity of that TSG, means that tumor suppressor genes, right? What about the missense mutation we are briefly discussing about in this video lecture. You see that this is a normal beta globin chain and this is a missense mutation beta globin chain. Okay,
difference about these two sequences. You can see this is a adenine in this particular portion. Adenine, it binds with a thymine, but here one, this number is a or pair is same, but द पोजिशन इज अ चेंजेस, यानी कि एडेनिन जो था वो अपर साइड पर था और थाइमिन जो है वो लोअर साइड पर था. तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन अप साइड पर आ गया और एडेनिन जो है वो लो साइड पर आ गया. तो क्या होगा, द पार्शियल आरएनए सीक्वेंस जब बनेगा तो यहाँ पर जी फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, GUG. ओके, यानी कि ग्लूटामाइन की जगह पर क्या आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा. ओके, तो ग्लूटामाइन replaced by the valine and cause the one important and well known disease is called that sickle shaped RBC or sickle cell anemia. Okay, so that missense mutation, it is also cause the sickle cell disease as well as cancerous disease. Now we are talking about the formation of a deficiency loop or also called as a deletions, right? You can see that area which are missing the deleted chromosomes. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं this is a normal chromosomes and this one is the deleted chromosomes, यानी कि C और D जो genes थे ये क्या हो गए हैं, यहाँ से delete हो चुके हैं. तो क्या होगा, you can see that कैसे ये होता है. तो साइनेप्सिस जब होता है, ओके, दो क्रोमोसोम्स के बीच में, तब जाकर ये फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिलीशन लूप. ओके, अगर साइनेप्सिस जो है वो पर्टिकुलरली जगह पर नहीं हुआ, साइनेप्ट कॉम्प्लेक्स नहीं एक दूसरे से साथ नहीं टूटा, और अगर टूटा है तो दो जीन्स जो है वो रिप्लेस आउट हो चुके हैं, तो विच कोजिंग द डिलीशंस. ओके, एंड इट ऑल्सो कोज द कैंसर. ओके, now we are talking about the types of tumor suppressor genes, right? One is that RB1 is that found in that small cell lung. ओके, यानी कि बहुत ही स्मॉल होता है और ये सेल के लंग में पाया जाता है. ओके, स्मॉल सेल्स के लंग में जो अल्वियोलर सेल्स है उसमें खास तौर पर RB1 जो है वो पाया जाता है. इफ द RB1 इज द लॉस एंड डिटेक्टिव और ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेस्ट्रॉय विच कोजिंग द लंग कैंसर. ओके, P53, ये आपको याद ही रखना है कि P53 क्या है. तो P53 इज ब्रेस्ट, लंग एंड कॉलोन कैंसर इज अकर. इफ द P53 is destroy, they cause the breast cancer, lung cancer and colon cancer. Okay, BRCA1 and BRCA2 is another type of tumor suppressor genes, and if they are destroyed, they control and causing the breast and ovarian tumor. Now we are focusing on that one particular tumor suppressor genes, and it is a very important, is that P53. P53 is a normal functions, is that नॉर्मल फंक्शंस की अगर हम बात करें P53 की, तो इट इज़ अ लास्ट गेट कीपर जीन. ओके, उसे क्या कहा जाता है, लास्ट गेट कीपर जीन कहा जाता है. एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर टू एक्टिवेट द P21 and which inhibits the CDK G1 cycling to halt the cell cycle. You can see that first of all इस सेंटेंस को आप पूरी तरह से रीड करो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि P53 क्या है. तो लास्ट गेट कीपर जीन है. ओके, वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को वो कंट्रोल कर रहा है. विच एक्टिवेट द P21, वो क्या कर सकता है, P21 को एक्टिवेट कर सकता है. और P21 क्या करता है कि CD की यानी कि साइक्लिन फैक्टर जो है, जो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जीवन इज़ व्हाट, जीवन इज़ अ वन टाइप ऑफ द phase of the cell cycle. Okay, gap 1 phase, gap 2 phase और S phase, याद आया, yes. तो जो CD के यानी कि साइक्लिन G1 को वो क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है. कौन, P53.
एंड दे हार्ट द सेल साइकिल। सेल साइकिल को वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्यों स्टॉप करेगा, ये स्टॉप कर देगा तो कोई भी सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी, उसका प्रोलिफरेशन ही नहीं होगा। तो ये क्यों कर रहा है सेल साइकिल को प्रिवेंट या फिर उसे स्टॉप क्यों कर रहा है, तो उसका मेन रीज़न है कि अगर कोई सेल में म्यूटेटेड डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हो गया तो वो सेल जो है वो ऐसे म्यूटेटेड कॉपीज़ बनाएगा, और ऐसी म्यूटेटेड कॉपीज़ ना बने इसके लिए ये P53 वो क्या कर रहा है, उसी सेल को एपोप्टोसिस में भेज देता है। एपोप्टोसिस यानी कि उसकी खुद की डेथ करवा देता है। प्रोग्राम सेल डेथ ट्रिगर्स द P53। ओके, जो सेल्स में म्यूटेटेड जीन्स वाला डीएनए है या फिर उसका प्रोटीन्स जो है वो क्या हुआ है, म्यूटेटेड बना हुआ है, तो उसे प्रोग्राम सेल डेथ में जाने देगा। उसे ऐसा कहेगा कि तुम अपनी डेथ करवा लो। ओके, इफ़ द डैमेज कांट बी रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रिपेयर करने का ट्राई करेगा, लेकिन अगर रिपेयर नहीं हुआ तो उस सेल को एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ में जाने देगा। ओके, ऐसा देखा गया है कि अगर P53 is mutated which implicates that 50% of the human cancers, ओके, कि अगर P53 जो है वो क्या हो गया है, इनएक्टिवेट हो चुका है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो ह्यूमन कैंसर्स कोज करेगा। किस टाइप्स के ह्यूमन कैंसर्स कोज हो सकते हैं इफ़ द P53 आर म्यूटेटेड? द ब्रेस्ट कैंसर, colon cancer, brain cancer, colorectal cancer, liver, lung, bladder and blood cancers can also form if the destroy P53. You can see that this is a figure. Just a minute. मैंने आपको आगे बताया वैसा ही यहाँ पर होता है। क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना रहा है। ओके, बट यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में क्या हुआ है, सेल जो है वो क्या हुआ है, म्यूटेटेड डीएनए कॉपीज़ उसके पास है, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 जो है P21 वो क्या करेगा, इनहिबिट्स करेगा किसे, ये इनहिबिट करता है साइक्लिन फैक्टर को जो ज़रूरी है जीवन के लिए। ओके, तो P21 को एक्टिवेट कौन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल P53। ओके, P53 एक्टिवेट द P21 and P21 which inhibits the cyclin factor and that cannot phosphorylate of the RB protein and cell cycle is arrest। सेल साइकिल क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। ऐसा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है P53 का। अगर ये जो है वो ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा अपनाता है, ओके, लेकिन अगर बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाला अगर प्रोटीन सेल के अंदर बन चुका है तो वो क्या करेगा, P53 उसे एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ करवाने के लिए भेज देगा। ओके, कैसे होती है, वी आर चेकिंग अबाउट दैट ट्रांसक्रिप्शन, द कोड्स। First of all, the phosphorylated P53 activates the transcription of the P21 gene and the P21 gene's cyclin factor inhibit the CDK, means that CDK cyclin complex। okay, P21 क्या करेगा, cyclin complex को inhibit करेगा and the inhibits the kinase activity so that the phosphorylation cannot occur, and that after the phosphorylation is not occur, RB protein cannot synthesize and cell cycle is arrest। okay, allow DNA to be repaired। क्यों अरेस्ट करता है सेल साइकिल को, कि उतना टाइम तक वो क्या कर सके, उतना टाइम वो सेल डीएनए को रिपेयर करने के लिए ले सके। ओके, सेल साइकिल को अरेस्ट करना यानी कि डीएनए रिपेयर करने के लिए टाइम लेना। ओके, इफ़ द डैमेज कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ऐसा लगता है उसे कि अब तो मैं थक चुका हूँ, अब तो डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, सेल की डेथ कर देगा। ओके,
The disruption or deletion of the p53 is the inactivation of the p53 protein, which uncorrect DNA damage which are found and proliferate this type of DNA damaging cell, they proliferate and then after grow and causing the cancer. Okay, so now you are clear about that. What about the p53 and the tumor suppressor genes? I hope you are clear about that tumor suppressor genes functions. Okay, you are hope like this video, and if you are knowing simple and basic terms, please give me your response in comment section. Thank you.